Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning. My name is Abhishek Sharma and today we are going to start Indian Economy Weekly Current Affairs lecture that will be dealing with the current affairs issues and analysis with respect to your economy, UPSC that happened from 19th to 25th of July. Now, the current affairs that took place last week, for them to have a broader understanding, we should first let's have just look at what all happened. So as far as the news articles in Hindu and Indian Express state, so things like number of undernourished people declines in India, so obesity in adults and is on the rise, and this is a UN report. Okay, then Tamil Nadu emerges as country's top investment destination. Then deprived of sources of livelihood, HIV, AIDS, vulnerable groups petition Global Fund. Then e-commerce sites must state country of origin. Okay, now in Live Mint, there was this news, Consumer Protection Act 2019 comes into force, and then National Financial Reporting Authority bans another auditor in Ireland FS. Now what is this NFRA? Okay, then digital taxation needs to be simple and inclusive. So this was there in the G20 finance ministers meeting, finance ministers and central bank governors meeting that happened. Then in the Press Information Bureau website, we came across news like restriction on public procurement, then Zoram mega food park. Then there was this center can fund deficit at a lower rate through direct monetization. So all these news items made headline during the last week of current affairs that we are going to discuss today in this video. But before starting with this discussion, let's just have a look at what mains questions are to be gathered with respect to all that happened in the last 1 week. So first question that we have to deal with today is the impact of COVID-19. So discuss the impact of COVID-19 on achievement of SDG, that is zero hunger, with special reference to the Indian context. Then analyze the role played by NFRA in stabilizing India's financial system. Third one, what is direct monetization? बहुत बार न्यूज में आ रहा है आजकल. How can it help in fiscal policy management? अब यहाँ पे ध्यान रखना, इंडिया की बात नहीं की गई है, जनरल बात करनी है. Okay, discuss the core outcomes of the recent G20 finance ministers and central bank governors meeting with respect to India. Then examine the role of mega food parks in Indian economy in context of recent government initiatives. So ये हमारे 5 मेंस के क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स इन करंट अफेयर्स के साथ साथ हमारे तैयार हो जाएंगे आज पढ़ते पढ़ते. फोकस आपने कुछ कीवर्ड्स का ध्यान रखना है जब इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे अपने लेवल पे. सो फॉर एग्जांपल इन द फर्स्ट क्वेश्चन कीवर्ड क्या होता है? It is about what the information should flow, जैसे हम हर करंट अफेयर वीडियो में आपको बता रहे हैं. So discuss the impact of COVID-19 on the achievement of SDG. So you have to focus on the impact part. So that is the core thing. For that impact, you have to definitely create certain indicators which are given as a part and parcel of this SDG itself. क्योंकि हर गोल के अंडरलाइन कुछ टारगेट्स हैं, तो उन टारगेट्स को यूज करके आपने इम्पैक्ट एनालिसिस करना है. Then analyze the role played by NFRA in stabilization of India's financial system. तो यहाँ पे stabilizing is the keyword, यहाँ पे फोकस रहना है. इस तरह से जो जो keywords हैं उन पे फोकस करते जाना है और आगे बढ़ते चले जाना है. ठीक है? Okay. Now, as far as ये सारे current affairs जो concerned हैं, इन सबको बड़े academic ढंग से, ठीक ढंग से पढ़ने के लिए आपको कुछ एक एस्पेक्ट्स की जरूरत है जो मैं आपको पहले दे रहा हूं. फिर हम इन सारे करंट अफेयर को 7D मॉडल के अंदर जैसे हम बात करते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, इश्यूज एंड सजेशंस, इस 7D मॉडल के अंदर स्टडी करते जाएंगे जैसे कि हम हमेशा करते हैं. तो बेसिक्स पहले ले लेते हैं और उसके साथ सारे करंट अफेयर्स हमारे मर्ज कर जाएंगे, एक कहानी आपके लिए बन जाएगी और उस कहानी से फिर हम आगे आगे करते चले जाएंगे. ठीक है? सो दिस साइकिल आई एम गोइंग टू यूज, दिस इज अ म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग वर्चुअस साइकिल और विशियस साइकिल ऑफ ग्रोथ. ठीक है? दिस इज व्हाट आई क्रिएटेड फॉर माय क्लासरूम वर्क ऑल्सो. सो नाउ एज फार एज दिस साइकिल इज कंसर्न, NI states national income, PCI stands for per capita income, S is savings, I stands for investment, FBL forward backward linkages.
ओके अब नेशनल इनकम अगर किसी कंट्री की ज्यादा हो, राष्ट्रीय आमदनी ज्यादा हो, तो फिर प्रति व्यक्ति आमदनी या पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा होगी, ऐसा आम तौर पे मानते हैं। लेकिन इसके दो ड्राइविंग फैक्टर्स हैं, पहला पॉपुलेशन कितनी है और दूसरा इनइक्वालिटी के क्या हालचाल हैं। तो अगर ये दोनों कंट्रोल में है तो फिर ठीक है, नहीं तो ट्रबलसम रहेगा। हम सोचेंगे कि इतनी नेशनल इनकम से इतनी पर कैपिटा इनकम आनी चाहिए थी, लेकिन उतनी आएगी नहीं। देन पर कैपिटा इनकम से सेविंग में जब जाते हैं तो टैक्सेशन, इन्फ्लेशन एंड कंज्यूमर बिहेवियर, या सिंपली लिख सकते हैं कंजम्पशन, ये कुछ ड्राइविंग फैक्टर्स रहेंगे जो डिसाइड करेंगे कि पर कैपिटा इनकम जितनी थी उसमें से बचत कितनी हुई, सेविंग्स कैसे आई, राइट। देन सेविंग से इन्वेस्टमेंट जब मूव करना हो तो वहां पे भी कुछ एरियाज हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन, देन द सेकेंड वन सेविंग रेट। So these will be the important areas here, ठीक। And the investment is also decided by policy। इन्वेस्टमेंट से जब हम फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस की बात करते हैं तो याद रखिए, जब भी कोई प्रोडक्ट बनने वाला होता है तो बनने तक की सारी लिंकेजेस को क्या बोलते हैं, बैकवर्ड लिंकेजेस। बनने के बाद बिकने तक की सारी लिंकेजेस को क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड लिंकेजेस। ये किस पे निर्भर करेगा, हमारी कंट्री की प्लानिंग कैसे है, कि हम ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को किस डायरेक्शन में आगे लेके चले जा रहे हैं, ठीक है। सो ये डिपेंड करेगा ओवरऑल बजटिंग किस तरह से चल रहा है। सो वो भी एक इसी एस्पेक्ट के अंदर आप मान सकते हैं। सो ये ओवरऑल इसी के अंदर आप गवर्नमेंट पॉलिसीज को भी देख सकते हैं, किस किस तरह से कहाँ कहाँ पे वर्कआउट कर रही हैं, राइट। देन फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस टू नेशनल इनकम, ये डिपेंड करेगा अल्टीमेटली, एक फैक्टर है incremental capital output ratio, which is a determinant of efficiency in the economy, कि कितनी आप कैपिटल डाल रहे हो एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट बनाने के लिए। अगर कम कैपिटल में एक एक्स्ट्रा यूनिट बन जाए तो एफिशिएंट इकोनॉमी है, ज्यादा कैपिटल खर्च करनी पड़े तो इनएफिशिएंट इकोनॉमी है। आज के जो बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं वो आपको इस साइकिल से मिले जुले से नजर आएंगे। ये जो कंपोनेंट है इन पर्टिकुलर हमारा डेमोग्राफी रिलेटेड है, क्योंकि हम बहुत बार ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड जैसी टर्मिनोलॉजी का यूजेज करते हैं, है ना। तो जब हम यूएन की रिपोर्ट्स पढ़ रहे होंगे या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात कर रहे होंगे, तब इस तरह के कंपोनेंट्स हमारे यूज में आएंगे। इसी तरह से जब हम एक्सटर्नल सेक्टर रिलेटेड कुछ न्यूज पढ़ रहे होंगे तब पता चलेगा कि ये नेशनल इनकम की पॉसिबिलिटीज क्या हैं, किस तरह से बढ़ सकती है, कितनी हमारी इकोनॉमी इंटीग्रेटेड है, बाकी इकोनॉमीज के ग्रोथ के हमें क्या फर्क पड़ता है। तो ये वाली सारी चीजें हम सीखेंगे, ठीक। फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस में भी हमें ये अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो फॉर एग्जांपल इस बार आर्मी ने कुछ फॉरेन वेपन्स के लिए ऑर्डर्स प्लेस किया है फॉर द इंसास राइफल रिप्लेसमेंट, या सो दे हैव कॉल्ड फॉर द 6 यूएसए कंपनी। सो वहां से हमारी राइफल्स इंपोर्ट होके आएंगी। अब इससे हमारी फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस इंडिया में कैसे इफेक्ट होनी है, इस तरह से यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। नाउ विदाउट फर्दर एड्यू लेट मी टेक यू टू योर करंट अफेयर्स, और एक एक करके इन सबको हम इनका कैथारसिस करना शुरू करते हैं, द 7 डायमेंशंस दैट वी ऑलवेज यूज। ओके, नाउ एज फार एज द न्यूज आर कंसर्न, सो लेट्स फर्स्ट बिगिन विद दिस न्यूज आइटम, achieving zero hunger by 2030. So regarding this UN Sustainable Development Goal, what is the report right now? Okay, तो ये particular topic आपके लिए useful किधर है? ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का सब हेडिंग है और डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स के लेवल पे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को देख रहे हैं, तो वहां पे ये हमारे लिए यूजफुल है, ठीक। जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, तो जो पॉसिबल डायमेंशंस हमें यहाँ पे उठानी है वो हम उठाएंगे। प्रीलिम्स के रिलेटेड फैक्ट्स होंगे तो वो व्हाट, व्हेन और वेयर में आ जाएंगे। जो मेंस के एनालिसिस रिलेटेड फैक्ट्स होंगे वो व्हाई, हाउ, इश्यूज, सजेशंस, इस तरह से वर्कआउट हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, जिन चीजों पे ध्यान देना और उन पे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो गोइंग फॉर द व्हाट फैक्ट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस रिपोर्ट, तो स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक स्टडी। ओके, ऑथेंटिक क्यों है? क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलके इसको स्टडी करती हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोग्रेस टुवर्ड्स एंडिंग हंगर एंड मालन्यूट्रिशन। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसको बनाती हैं रिपोर्ट को? प्रीलिम्स में इसको लेके क्वेश्चन आ सकता है।
प्रॉबेबली वो उसमें से एक ही ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखें, FAO, पर फिर आपका आंसर गलत होगा। अगर आपके पास कुछ कॉम्बिनेशन या नन ऑफ द अबव पॉसिबिलिटी है तो फिर उसके पास जाना है। और कॉम्बिनेशन में कौन कौन से एस्पेक्ट्स आएंगे? FAO के साथ IFAD, यूनिसेफ, WFP एंड WHO, इन सारी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर रिपोर्ट तैयार की है, इसीलिए इसकी ऑथेंटिसिटी भी इनहैंस्ड है। ठीक, अब ये रिपोर्ट कहती क्या है? So basically, what are the issues underlying this particular report that it has basically taken out? So first one, steep rise. So the study estimates that almost 690 million people went hungry in 2019, and there are 10 million people more to this hunger pool which have been added since the last count in 2018. So essentially, जैसे हम इंडिया में बात करते हैं, 1/3 of the people are not able to secure more than one secure source meal a day. So एक स्क्वायर मील भी ठीक से नहीं ले पाते हैं, तो ये एक बड़ा इशू है। ऐसे ही वर्ल्ड ओवर हंग्री पीपल जो है बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इसी वजह से क्रॉनिक हंगर का एक इशू निकल के आता है, लॉन्ग टाइम हंगर, जिससे फिर हेल्थ हैजार्ड्स एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स कमिंग अप। ओके, नाउ इसके रिपोर्ट के अंदर मेंस में आंसर राइटिंग के लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन क्या है? नो चेंज इन द हंगर ट्रेंड सिंस 2000। देखो, इतने सारे एफर्ट्स अलग अलग गवर्नमेंट्स कर रही हैं अपने अपने लेवल पे, अपनी अपनी कंट्रीज में। लाइक इंडिया में ही अगर आप देखें तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है जो 2013 से चल रहा है, लेकिन रिपोर्ट अपने आप में क्या स्टेट करती है वेरी क्लियरली कि हंगर में कोई डिक्लाइन नहीं हो रहा, रादर it began to rise in 2014 and it continues to do so. अभी भी number of hungry people are increasing. Okay, and definitely COVID-19 situation में ये और worse off हुआ। Then regional hotspot. So continental level पे देखा जाए तो कौन सा एक particular continental region है जहां पे सबसे ज्यादा hungry people are to be found? So that is Asia. So Asia remains the home to the greatest number of hungry, and followed by Africa and then Latin America. So these are the top 3 in that category. Now, the rate of hunger and undernourishment in Africa is said to be doubling as compared to Asia in a very small period of time. So this is a particularly concerning fact. As far as the COVID-19 situation is concerned, we all know it is going to worsen of the situation. And the major reason for all this is the high cost and low affordability was the main reason for this particular hunger. ऐसा क्यों बोलते हैं हाई कॉस्ट एंड लो अफोर्डेबिलिटी? क्योंकि अफोर्डेबिलिटी का जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इकोनॉमिक अफोर्डेबिलिटी जब हम देखते हैं तब हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं। बहुत जगह पे पॉलिटिकल अफोर्डेबिलिटी भी हंगर का एक कारण है। अब जैसे अफ्रीका के अंदर और बहुत सारी कंट्रीज के अंदर, स्पेशली इन द बैकवर्ड रीजन्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, then World Food Program, FAO, Red Cross, so many are providing the aid. But that aid is also not available on an equitable basis to everybody. इसी वजह से जो हंगर का एक क्रॉनिक इशू है, पॉलिटिकल अफोर्डेबिलिटी ना होते हुए चलता ही चला जा रहा है। क्योंकि पॉलिटी इज व्हाट इट इज डिसाइडिंग हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड वेयर। तो इस सिचुएशन में जब हम रख के देखते हैं हंगर के क्लाइमैक्स को, तो वो एक तरह से it is painting a bad picture. Now, moving on. What should we do? So, report has come out with certain suggestions as well out of our 7 dimensions. Now, shifting of diet and transformation of food systems. So, these are the 2 basic things that we have to deal with respect to the hunger problem. और hunger में भी एक particular fact है hidden hunger, जहाँ पे लोगों के पास calories तो sufficiently आ रही हैं लेकिन nutrition is a big issue. So that is the hidden hunger. Now, the study calls for certain actions from the government. First is to mainstream nutrition and work to cut cost escalating factors. For example, इंडिया में अब जो लॉजिस्टिक्स की ही कॉस्ट है वही अपने आप में 12 से 13% कॉस्ट ऐड कर देती है फूड के प्राइसेस को। उसके बाद जो इंटरमीडियरीज हैं वही अपने आप में बहुत ज्यादा कॉस्ट एस्केलेशन कर देते हैं टू एन एक्सटेंट ऑफ 65% इन दी फूड प्राइसेस। तो कंज्यूमर और सेलर, मतलब कि फार्मर और आम आदमी जो इसको खाने के लिए सामान मिलना है, इन दोनों को करीब करीब एक्स्ट्रा बर्डन झेलना पड़ता है बिकॉज ऑफ द इंटरमीडियरीज एंड द लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व। ठीक, इसके लिए गवर्नमेंट को एफर्ट करना चाहिए एंड इट शुड सपोर्ट द लोकल स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स टू ग्रो एंड सेल मोर न्यूट्रिशियस फूड and secure their access to markets। जैसे कि अभी फार्म ऑर्डिनेंसेस का भी हमने एक इशू पढ़ा था, तो उसके अंदर ये पर्टिकुलर मोमेंटम हम ऑलरेडी क्रिएट कर रहे हैं, राइट।
देन गवर्नमेंट के लिए और कुछ सजेशंस हैं, लाइक प्रायोरिटाइज चिल्ड्रंस न्यूट्रिशन, foster behavioral change and embed nutrition in the national social protection system. So whatever schemes you are coming up with, अब जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि अलग अलग जो फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स थे उन सबको एक सिंगल अम्ब्रेला प्रोग्राम के अंदर हम लेके आए हैं, दैट इज कॉल्ड पोषण अभियान. ओके, सो इस पोषण अभियान के अंदर अब यही एम्बेडिंग ऑफ न्यूट्रिशनल सिस्टम्स है, जिसको आप याद होगा आपको नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, तो वो भी इसी का पार्ट एंड पार्सल बनाया गया है. ठीक, so this was all that is related to this particular report. So this will help you in understanding 2 or 3 interdisciplinary aspects. One is the food management aspect, which you study in agriculture. Second is the demographic development aspect. एंड ये आपके नेशनल इनकम टू पर कैपिटा इनकम की कंटिन्यूम में जो हमने डेमोग्राफी की बात की थी वहां पे भी आपको एक डेवलपमेंटल एस्पेक्ट देता है. ठीक, इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन, द पॉलिटिकल अफोर्डेबिलिटी वहां पे काम आएगा. ठीक है, पर कैपिटा इनकम्स के लेवल पे जब देखना शुरू करोगे तो इकोनॉमिक अफोर्डेबिलिटी का कॉन्सेप्ट काम आएगा. तो इस तरह से आपने इसको समझना है. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. Investments in India. Now, remember the whole cycle that we drew? In that, we say saving to investment, investment to, then forward backward linkages. किस तरह से वो इन्वेस्टमेंट ड्राइव हो रही हैं गवर्नमेंट के लेवल पे या प्राइवेट के लेवल पे. तो इन्वेस्टमेंट्स को लेके इस पर्टिकुलर न्यूज आइटम ने हाईलाइट ये किया कि इंडिया के अंदर ओवरऑल अभी इन्वेस्टमेंट स्लो डाउन है, और अगर इन्वेस्टमेंट्स कहीं हो रही हैं सो दैट इज हैपनिंग द मोस्ट इन Tamil Nadu. It has emerged as the top investment destination. Why Tamil Nadu, Maharashtra, UP, Madhya Pradesh and Karnataka are still having fresh investments coming in despite the pandemic situation is they have reworked their labor laws, started building land banks and sent proposals to foreign companies कि आइए और हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए. देखिए ध्यान रखिए, जब हमने इन्वेस्टमेंट की बात की थी तो इन्वेस्टमेंट के लिए ड्राइवर्स कौन कौन से हैं? इन्वेस्टमेंट के लिए ड्राइवर्स हैं कि आपका इन्फ्लेशन कितना है इकोनॉमी के अंदर. दूसरा इन्वेस्टमेंट के लिए ड्राइवर है पॉलिसी कैसा है ओवरऑल, तो ये सारे पॉलिसी रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं जहां पे गवर्नमेंट कुछ ना कुछ वर्कआउट कर रही है. तीसरा इन्वेस्टमेंट के लिए ड्राइवर है कि सेविंग इंटरेस्ट रेट कितना है. तो ये जो सारी चीजें हैं इन सब के लिए अगर वर्कआउट करेंगे तो पॉलिसी लेवल पे गवर्नमेंट ने कुछ पॉजिटिव मूवमेंट्स दिखाए हैं. लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये 4 बेसिक बैलेंसिंग फैक्टर्स हैं. इसमें से कैपिटल तब आएगा जब लैंड, लेबर और एंटरप्रेन्योरशिप के लेवल पे गवर्नमेंट एक प्रॉमिसिंग पॉलिसी डिलीवर करता है. वही इन्होंने इन स्टेट्स के अंदर किया और इसी वजह से ये बेटर भी हो रहा है. नाउ मूविंग ऑन द इश्यूज. Presently, there is a slow-moving official machinery, archaic land and labor laws in the country, जिसकी वजह से अभी भी ease of doing business को इतना ज़्यादा rationalize हम नहीं कर पाते इंडिया के अंदर. हालांकि हमारा रैंक बहुत improve कर रहा है, but still, as far as the amount of investments that can be coming into India, थोड़ा बहुत बंदा फिर भी डर जाता है because this is the particular issue. Okay, now what are the suggestions how to improve upon them? So India has the required labor force in abundance, and it is high time that we reap the demographic dividend. We have the people who are now getting skilled more and more, so we should find a sufficient level of employment for them. And for this, you just have to improve upon the ease of doing business criteria all over. And we have the potential to be the contract manufacturers of the world in areas such as automobile ancillaries, जैसे कि spare parts and so on, smartphones, electronic items, एंड सो मेनी अदर थिंग्स. जैसे एप्पल आईफोन 11 जो है वो अब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग उसकी स्टार्ट हो गई है, राइट. सो इस तरह से वी हैव टू बी ड्राइविंग इन्वेस्टमेंट्स, और ये वहां पे आप यूज कर सकते हो जब भी आपको क्वेश्चन आता है जैसे मेंस के अंदर, दैट इन्वेस्टमेंट्स आर वन ऑफ द क्रिटिकल फैक्टर्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी. इस तरह से मेंस के अंदर यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है ना. तो वहां पे ऐसा कोई भी आपको फैक्ट्स जब मिलते हैं तो वो मेंस में इस तरह से यूज हो जाते हैं. नेक्स्ट न्यूज आइटम फॉर आवर कंसर्न इज ग्लोबल फंड. नाउ इसका पूरा नाम क्या है पहले तो? इट इज अ ग्लोबल फंड फॉर एड्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया काइंड ऑफ एपिडेमिक्स, एंड इट वांट्स टू काइंड ऑफ क्रिएट अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंडिंग लेवरेज सो दैट concerted efforts can be done in controlling these epidemics. Now this fund is an international financing and partnership organization. It is stationed at Geneva, Switzerland. It was started in 2000. Now, right now, what is the issue with respect to this fund? Indian government in 2019 pledged a huge amount of money to this, around $22 million US. And why? Because we are also sharing the commitment towards, containing or ending the epidemics of HIV, TB and malaria. Now,
Why it was in news, why this particular thing happened? Key population affected by HIV/AIDS, they were also kind of, curtailed in the COVID-19 situation, and now they are not able to support their living. So they have put up a kind of a memorandum to the fund कि आप हमारे लिए कुछ कीजिए. तो इसमें की पॉपुलेशन में है कौन कौन? दे आर सेक्स वर्कर्स, ट्रांस पीपल, गे, बायसेक्सुअल मेन, ड्रग यूजर्स, सच काइंड ऑफ पीपल हु आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम दीज डिजीजेस. अब उनको आप अगर लॉकडाउन के अंदर रखते हैं तो फिर दे नीड सर्टन सपोर्ट सिस्टम. तो इस फंड से बेसिकली सपोर्ट सिस्टम को लेके हमारा एक न्यूज आइटम था. अब इसमें प्रीलिम्स में आपकी इंफॉर्मेशन क्या चाहिए? प्रीलिम्स में यू शुड नो वेयर इट इज, यू शुड नो व्हाट इट इज, and you should know when it started and where it is focused. बस इतना ये प्रीलिम सेंट्रिक इंफॉर्मेशन इससे निकल के आता है. मेंस में इसका कुछ खास इम्पैक्ट नहीं है, एक्सेप्ट फॉर अगर आपको कोई स्पेसिफिक डिजीज ओरिएंटेड क्वेश्चन आ जाए कि HIV/AIDS या ट्यूबरक्लोसिस को लेके क्या एफर्ट्स आजकल चल रहे हैं, तो वहां पे इंटरनेशनल लेवल पे इस ग्लोबल फंड को आप बता सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज आइटम है जो हमारे काम की है, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. सो इट जस्ट केम इनटू फोर्स लास्ट वीक. तो उसके लेके ये न्यूज आइटम था. दिस चार्ट इज प्रोवाइडिंग यू कंपैरेटिव डेटा विद रिस्पेक्ट टू what was the situation with the earlier Consumer Protection Act 1986 and how it has been improved in the 2019 Act. So I have tried to create regulator, consumer court, product liability, then pecuniary jurisdiction, e-commerce and mediation cells. These are the dividing lines between the two acts and how it has improvised. So we'll be studying all these dividing lines through our areas and inputs. So 7-dimensional areas as usual: what, when, where for prelims, how, why, issues, suggestions for मेंस. ओके, चलिए शुरू करते हैं. प्रीलिम्स ओरिएंटेड इसमें से हमें क्या चाहिए, व्हाट के लेवल पे? सो द न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट व्हेन इट केम इनटू फोर्स 20th जुलाई 2020. स्टेट लेवल एग्जाम जब आप देते हैं तो इस तरह की डेट्स कई बार बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. हिमाचल में, पंजाब में ऐसी डेट्स पूछने का रिवाज है पेपर के अंदर. आप पिछले साल के अगर पेपर निकाल के देखेंगे तो वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है. ठीक है, अच्छा, अब इसका ओवरऑल फोकस क्या रहेगा? It will create swift and less time-consuming consumer dispute resolution mechanisms. So that is the core thing. क्योंकि पहले होता क्या था, हमारे पास एक नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग अलग लेवल पे 3-tier मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता था. लेकिन इस 3-tier में ही बंदा फंस के रह जाता था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो चलता था. सो अब उससे निकल के वी हैव कम इनटू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 व्हिच इज प्रोवाइडिंग ए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी whose primary objective will be to promote, protect and enforce the rights of the consumer. किस तरह से ये rights of the consumer protect, promote और preserve करेगा? So how is the functionality here, step-by-step process. So herein it is empowered with certain kind of truth. So how will it be using that? So it can conduct investigations into violation of consumer rights. suo moto कर सकता है, किसी की complaint की जरूरत नहीं है. ठीक है. Then ऑर्डर और रिकॉल अनसेफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये इंडिया में बहुत देर बाद देखने को मिला. जैसे आप सुनते थे कि फोर्ड ने इतने मिलियन गाड़ियां वापस मंगवाई क्योंकि उनकी ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम आई. इस तरह की न्यूज हम इंटरनेशनल लेवल पे सुना करते थे, लेकिन इंडिया में ऐसी न्यूज कम ही सुनने को मिलती थी. कोई ना कोई जुगाड़ चलता ही रह रहा था. लेकिन अब इंडिया में भी इस तरह का एक प्रावधान आ गया है. ठीक है. देन इम्पोज पेनाल्टीज ऑन द मैन्युफैक्चरर्स, एंडोर्सर्स और पब्लिशर्स ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट. ये ब्रांड नंबर 1 है, पतंजलि खाइए, ये बन जाइए. नो ऑफेंस टू पतंजलि इन दिस केस, बट इन द कोविड-19 सिचुएशन व्हाट रियली हैपेंड इन द कोरोनल इशू, दिस वाज इट. तो अब एक पर्टिकुलर लेवल पे वहां पे कोई मिसलीडिंग एड अगर होगी तो गवर्नमेंट के पास एक एक्ट है जिसके थ्रू उनको पनिश किया जा सकता है. ठीक है. हमेशा हर ब्रांड इंडिया में अपने आप को नंबर 1 ही क्लेम कर रहा है, तो कोई नंबर 2 ब्रांड इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता. इस तरह की मार्केट बन गई है ना. एंड दे विल हैव बिग स्केल एक्टर्स endorsing their brands and then kind of creating an information asymmetry, जहां पे लोगों को बहुत बार ऐसी इंफॉर्मेशन जो देनी चाहिए वो नहीं दी जाती और प्रोडक्ट एंडोर्समेंट्स ही की जाती हैं. उस वजह से मार्केट डिमांड क्रिएट होती है और अल्टीमेटली कभी कभी कंज्यूमर का फायदा होता है और कभी कभी
नुकसान, बट हमेशा ऑर्गेनाइजेशंस का फायदा जरूर होता है। तो ऐसी सिचुएशन को रोकने के लिए दिस पर्टिकुलर एक्ट हैज कम इनटू प्लेस। नाउ as far as the simplification of consumer dispute adjudication process is concerned, so there this act has played a very significant role. देखो कैसे, empowering the state and district commissions to review their own orders. एक ऑर्डर पास जो पहले का कभी हो रखा है एक पर्टिकुलर सेगमेंट में, उसको भी वो रिव्यू कर सकते हैं। दिस इज द की थिंग हियर। So retrospectively this can be done. Then enabling a consumer to file complaint electronically. कौन जाए कोर्ट के अंदर, है ना, फोन से अगर हो पाए तो बहुत ही अच्छा, ऐप बन जाए और भी अच्छा। सो दैट इज वेयर वी आर गेटिंग एट राइट नाउ। देन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑफ हियरिंग एंड डीम्ड एडमिसिबिलिटी ऑफ कंप्लेंट्स। अब ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज द नेक्स्ट थिंग इन द लीगल ट्रायल्स एंड एवरीथिंग, एंड डेफिनेटली दिस विल कंजर्व टाइम ऑन द बेसिस ऑफ फॉर द कंप्लेनेंट एज वेल एज फॉर द कोर्ट्स, एंड मे बी हेल्प इन द स्पीडियर डिसोल्यूशन ऑफ केसेस ऑल्सो। या देन एज फार एज द इश्यूज आर कंसर्न, अब इसी एक्ट के चलते कुछ एक इश्यूज हैं जिन पे हमेशा गहमा गहमी चलती रहती है, लेकिन इसने काफी हद तक उन इश्यूज को रिजॉल्व भी किया है। फर्स्ट इज प्रोडक्ट लायबिलिटी। तो पहले प्रोडक्ट लायबिलिटी को लेके कुछ खास क्लैरिटी नहीं होता था हमारे पुराने एक्ट के अंदर, लेकिन नाउ ए मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर और द सेलर इवन जो उनको बेच रहा है will be held responsible to compensate for injury or damage caused by a defective product or deficiency in service. आप हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को लेके जाते हैं, लेकिन वहां पे आपसे प्रॉमिस कुछ करें, डिलीवर कुछ करें, तो दैट्स अ डेफिशिएंसी इन सर्विस। सो वहां पे भी आप कंप्लेनेंट बन सकते हैं एंड यू कैन गो फॉर योर कंप्लेंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। देन पनिशमेंट फॉर मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ अडल्ट्रेटेड और स्पूरियस गुड्स। बहुत बार दिवाली के आसपास मिठाइयां हम देखते ही थे, है ना, नकली खोआ मिल रहा है इधर से उधर से, वो सारी चीजें भी कर्टेल करने के लिए अब सिंगुलर एक हमारे पास लॉ बनते चला जा रहा है। दीज काइंड ऑफ इनेबलिंग लीगल सिस्टम्स काइंड ऑफ हेल्प ऑल्सो इन द मैच्योरिंग प्रोसेस ऑफ द स्टेट, जहां पे हम एक फाइनल सोल्यूशन के लेवल पे सिटीजन को कुछ ऑफर कर सकते हैं। देन ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म ऑफ मीडिएशन। कभी कभी अगर कोर्ट को लगे कि मीडिएशन के थ्रू ये एक पर्टिकुलर मुद्दा सुलझाया जा सकता है, तो उन्होंने मीडिएशन सेल्स का भी प्रावधान इस एक्ट के अंदर रखा है ताकि स्पीडियर डिस्प्यूट सेटलमेंट जो है वो हो सके। अब ये कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड सच काइंड ऑफ एक्ट्स व्हिच कम इनटू फोकस, दे आर एसेंशियली द इनेबलिंग एस्पेक्ट्स ऑफ योर मार्केट डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम। सो व्हेनेवर यू लुक एट इट from the syllabus point of view, you will put it in the growth and development perspective, and it essentially helps in the correction of the demand side and supply side problems, and it's the legal system that enables the whole thing to move forward in the right direction. Now, as far as the next news item for us is concerned, it is related to financial system. Financial system के अंदर NFRA was in news. So NFRA के लिए आपको at least basic preliminary facts कुछ पता होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत न्यूज में रहा। So essentially the what, when, where perspective, और NFRA की अभी recent activities क्या चल रही हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। So National Financial Reporting Authority, it has constituted recently a technical advisory committee under the chairmanship of R. Narayan Swamy. What will it do? It will draft the accounting standards and auditing standards for the firms in India, because हमने देखा ILFS और बहुत सारी कॉर्पोरेट्स हैं जिनकी इंसॉल्वेंसी बिल्कुल एन मौके पे जाके पता लगी, हालांकि जब उनकी ऑडिटिंग की जा रही थी तो उस टाइम पे कुछ ऐसा नहीं लग रहा था। फॉर एग्जांपल ILFS, या फॉर एग्जांपल एनी बैंक्स which were recently in the bad news, which got a bad name, or the public sector banks also and the cooperative banking system also, इन सबको एक दिन पहले तक इनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत बढ़िया है, एक दिन पहले तक इनके ऑडिट्स बड़े सही चल रहे हैं, लेकिन जिस दिन इनके अगेंस्ट कंप्लेंट आती है, जिस दिन इनका दिवालिया निकलता है, तभी पता चलता था कि ये क्या हो गया। तो ऐसे शॉक एंड ऑ काइंड ऑफ सरप्राइजेस ना मिले, तो इसलिए कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिनके सुधार की जरूरत थी, तो वो किया गया है। अब टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी जो है वो इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ड्राफ्ट बना के देगी। Okay, now as far as NFRA is concerned, so NFRA was constituted in 2018 by the Government of India under Section 132 Part 1 of the Companies Act 2013. So it is an audit regulator. So अलग अलग companies के audit कैसे होने उनको regulate करने के लिए we have NFRA. Now the background to this whole thing, जैसे मैंने अभी आपको बताया, was the corporate scams that we just looked up, for example in the Punjab National Bank. Now अब इसके ओवरऑल फंक्शंस और ड्यूटीज क्या रहेंगे? सो देखिए,
इट विल रिकमेंड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पॉलिसीज। ये किसके फंक्शंस एंड ड्यूटीज हैं? TAC, जो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी आर नारायण स्वामी के अंदर बनाई गई है। सो it will recommend the accounting and auditing policies and standards to be adopted by companies for approval by central government, ताकि एक systematic तौर पे सबके accounting and auditing उनके पास पहुंच जाएं। It will monitor and enforce compliance with these standards. Then it will oversee the quality of service of the professions associated with ensuring compliance with such standards. जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जिनको इंडिपेंडेंटली एलोकेट किया जाता है ऑडिट करने के लिए, उनको भी ये मॉनिटर करेगा। और इसको सफिशिएंट पावर भी दिया गया है टू इंश्योर कि जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो ठीक से चलें। कैसे हैं देखिए। So it can undertake investigation related to following classes such as companies whose securities are listed on any stock exchange in India or outside India, unlisted public companies who have a capital or paid up capital of not less than 500 crore rupees or the annual turnover of not less than 1000 crore rupees. Fine. So ऐसे areas में इसके powers and privileges रहेंगे, वहाँ पे काम करेगा। Then even insurance companies, banking companies, companies engaged in generation or supply of electricity, ये सारे जो हैं इन accounting और auditing standards से बाध्य रहेंगे, इनको इसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि खास तौर पे जो प्रॉब्लम आती है वो भी यहीं पे आती है। Then it's the whole thing, TAC जो है और जो ये पूरे अकाउंटिंग सिस्टम है, इट्स अकाउंट इज मॉनिटर्ड बाय CAG ऑफ इंडिया। तो हमारे पास एक ओवरऑल ऑडिटिंग के जो सिर पे बैठे हैं वो CAG हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो कि आपके IAS के एग्जामिनेशन के बाद CAG के अंदर रिक्रूटमेंट होती है, फिर धीरे धीरे CAG ऑफ इंडिया बन जाता है। रिमेंबर योर पॉलिटी पार्ट, आर्टिकल 148 to 151। ओके, नेक्स्ट एस्पेक्ट फॉर अस, within fiscal system, within the fiscal responsibility and budget management, there was a news direct monetization for funding of deficit, और ये एक recommendation sort of report sort of create किया गया by State Bank of India, जिसमें उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट जो है उनको अब डायरेक्ट मोनेटाइजेशन पे आ जाना चाहिए। अब ये डायरेक्ट मोनेटाइजेशन अपने आप में टर्म क्या है, पहले तो ये समझना है प्रीलिम्स के एंगल से, और इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा फिस्कल सिस्टम के ऊपर या फिस्कल पॉलिसी के ऊपर, वो भी हमें समझना है फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव। सो लेट्स गो इनटू इट वन बाय वन। So as far as SBI is concerned, so SBI has recommended the direct monetization as a possible way of funding the center's deficit, और इससे जो है खर्चा भी थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। सो एट लोअर रेट्स विदाउट इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन एंड अफेक्टिंग दी डेट सस्टेनेबिलिटी। सो ये डेट सस्टेनेबिलिटी जैसी भारी भरकम जो टर्म्स हैं, इनका मतलब क्या होता है थोड़ा सा ये भी समझेंगे। ओके, नाउ डायरेक्ट मोनेटाइजेशन क्या है, पहले यही देख लेते हैं। सो इट इज व्हेन द RBI डायरेक्टली फंड्स द गवर्नमेंट्स डेफिसिट अगेंस्ट गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज। मतलब RBI गवर्नमेंट से बॉन्ड या सिक्योरिटी ले और बदले में पैसा दे दे, काम खत्म। प्रिंट करके देना है, कोई बाहर से कहीं बोरो करके नहीं देना है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की जो लायबिलिटीज हैं वो नहीं आती, और गवर्नमेंट फिर उनको एक सिस्टमैटिक तरीके से अगर यूज करेगा तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहेगा। नाउ अप टिल 1997, रिमेंबर वेज एंड मीन्स एडवांसेस सिस्टम, यस, तो 97 तक ये चला, उसके बाद ये WMA सिस्टम आ गया था। तो WMA सिस्टम तक गवर्नमेंट के पास एडहॉक ट्रेजरी बिल हुआ करते थे, जिनको वो RBI को देता और पैसे ले लेता और प्रिंसिपल खर्च करता, इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा पे करता रहता। तो ये सिस्टम होता था। तो उससे लेकिन बजट डेफिसिट हमारे बढ़ते रहते थे। 97 के बाद हमारा कोई बजट डेफिसिट नहीं है जब से WMA सिस्टम आया है। यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर इकोनॉमी क्लासेस, अदरवाइज यू विल लर्न विद अस एट CBL। ओके, नाउ हाउएवर दिस प्रैक्टिस वाज स्टॉप्ड ओवर इट्स इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट। डेफिनेटली अब प्रिंसिपल खर्च करते रहोगे, इंटरेस्ट दोगे नहीं तो इन्फ्लेशन तो होगा, डेफिनेट है। सो देयरफॉर RBI वेंट फॉर दिस WMA सिस्टम, एंड उसके अंदर फिर सारी जो गवर्नमेंट की एक ओवरड्राफ्ट जैसी फैसिलिटी क्रिएट की गई कि आप 10 दिन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और 14 दिन के लिए स्टेट गवर्नमेंट उस ओवरड्राफ्ट को यूज कर सकते हैं, अप टू 75% ऑफ द ट्रेजरी बिल्स दैट हैव बीन डिपॉजिटेड बाय इट विद द RBI। सो खैर, WMA सिस्टम की बजाय अब सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेट की अगर बात देखें, आपको डायरेक्ट मोनेटाइजेशन समझ आ गया, WMA पे हमने थोड़ी सी बात की, अब सस्टेनेबिलिटी की बात देखें तो इंडिया का जो ग्रॉस डेट है वो किस तरह से बढ़ रहा है। तो GDP के हिसाब से अगर देखें तो GDP तो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ऑलमोस्ट -5% पे हम सोच रहे हैं कि 2020-21 में आ जाएगी एज पर द गिवन डेटा विच इज कमिंग अप, एंड इंडियाज डेट टू GDP रेशो
is projected to rise to around 170 lakh crore rupees, that is 87.6% of the GDP in the financial year 2021. FRBM targets या कुछ भी हम देखें तो वो कहां पे पॉइंट कर रहे थे, 40% सेंटर 20% स्टेट. सो जो एनके सिंह कमेटी आया था तो उसने 60% डेट टू जीडीपी की बात करने की कोशिश किया था कि इट शुड बी 60% ऑफ जीडीपी. लेकिन हमारा वो डेट अभी के लिए कहां पे खड़ा है, 72.2%, एंड इट विल गो अप टू ऑलमोस्ट 87.6% ऑफ जीडीपी. इस तरह से सिचुएशन बन जाएगी. डेट ठीक है, अपनी जगह पे है, आज की डेट में हमारी रिक्वायरमेंट है, उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं एसबीआई का रिपोर्ट, लेकिन उस डेट की कॉस्ट कम होनी चाहिए. तो कॉस्ट के परस्पेक्टिव से, क्योंकि बोरोइंग कॉस्ट तो है ना, इंटरेस्ट रेट, उस परस्पेक्टिव से आरबीआई के थ्रू अगर डायरेक्ट मोनेटाइजेशन होगा, that will make it easier for the government to sustain that debt over a period of time. So looking at this, FRBM एक्ट की अगर बात करें तो वो भी अलाउ करता है कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर इस तरह की डायरेक्ट मोनेटाइजेशन हो सकती है. तो प्रीलिम्स के अंदर ये भी एक पॉइंट आपके काम का होगा. ठीक, देन now as far as your report is concerned, so report has argued bringing growth back is more important to debt sustainability as compared to fiscal conservatism. So fiscal conservatism क्या बोलता है कि भाई बचा के जरा चादर देख के पैर पसारिए, उतना की कर्ज लीजिए जितना आराम से वापस कर सकते हैं, वो सब मत करो. डेट लो, आज की डेट पे ग्रोथ लाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ग्रोथ मोमेंटम होगा तभी कहानी आगे चलेगी, है ना. ओके, नेक्स्ट. As the current level of foreign exchange reserves are sufficient to meet any external debt obligations, क्योंकि वो भी तो एक important part है. Also, since most of the debt is domestically owned, अगर देखा जाए तो इंडिया का 21% जो डेट है that is external and 79% is internal. Therefore, the debt servicing of internal debt is also not an issue. अगर भाई अपने ही पब्लिक सेक्टर बैंक से आपने डेट ले रखा है और उन्हीं को वापस देना है, तो इनफैक्ट अगर इंटरेस्ट जाएगा भी तो आप सोच के देखिए, एसबीआई इज द गवर्नमेंट्स बैंक ओनली. अगर एसबीआई की कमाई है तो अल्टीमेटली जाएगा किधर, सरकार की जेब में ही ना, तो उसमें टेंशन नहीं है. ठीक, लेकिन वो थोड़ा सा एक बुक ट्रांसफर जैसा तो कुछ है ही ना. ओके, द रियल चैलेंज इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विच कैन टर्न इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल इनटू पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी. अब ये क्या होता है, इंटरेस्ट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल, आओ समझते हैं, प्रीलिम्स के लिए भी जरूरी है. सो इट इज ए की मेट्रिक वॉच्ड बाय एजेंसीज टू गेज डेट सस्टेनेबिलिटी. कभी भी आपको एफआरबीएम पे क्वेश्चन आए तो उसमें डेट सस्टेनेबिलिटी एक एस्पेक्ट है जिसपे आपको बात करनी है मेंस के अंदर. और उस डेट सस्टेनेबिलिटी के लिए मेजर इंडिकेटर क्या है, इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल. अब ये क्या होता है, सो ए नेगेटिव इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल विच डिनोट्स ग्रोथ इज हायर देन इंटरेस्ट रेट ऑन डेट is important from a sustainability perspective. A higher growth means government's revenue expansion will outstrip any spike in debt repayment. आपका growth rate ज़्यादा होना चाहिए इकोनॉमी का एज कंपेयर टू लोन के ऊपर ब्याज कितना है. अगर 8% आपका ग्रोथ रेट है और लोन पे ओवरऑल जो ब्याज बनता है वो 2% है, तो कोई टेंशन नहीं, उधर से पैसा आएगा, इधर हम आराम से दे भी देंगे, आगे भी ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट के लिए स्कोप रहेगा. तो ये जो एस्पेक्ट है ये बहुत बैलेंस रहना चाहिए. ठीक है, अगर ये एज इट इज हमारे पास इंटरेस्ट और ग्रोथ रेट डिफरेंशियल जो है पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी में चला जाता है, देन इट इज अ प्रॉब्लम. इट शुड रिमेन इन नेगेटिव ट्रैजेक्टरी इटसेल्फ, ताकि आपका जो ग्रोथ रेट है वो हमेशा ज्यादा जाना चाहिए. दैट्स द मीनिंग ऑफ इट. ओके, ध्यान से प्री के लिए इसको बढ़ के जाना है, मेंस के लिए भी ये पॉइंट यूज होगा जब भी आप एफआरबीएम या फिस्कल पॉलिसी पे या डेट मैनेजमेंट पे बात करेंगे. ये वाले जो क्राइटेरिया है ना मेंस के पास अब रिफ्लेक्ट होने ही चाहिए, क्योंकि आप कोविड-19 सिचुएशन में गवर्नमेंट को फिस्कल स्टिमुलस देना है. इस फिस्कल स्टिमुलस की लिमिटेशंस और मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी जिसकी हम पहले लेक्चर्स में भी बात करते आए हैं, गिवन बाय स्टेफनी केल्टन, सो उसके बारे में भी आपने अब पूरे का पूरा सिनेरियो बिल्ड करना है. जो लास्ट करंट अफेयर्स की क्लासेस होती रही हैं वहां पे भी आप इसको जस्ट एज एन एड ऑन आप यूज कर सकते हैं इन दी फिस्कल पॉलिसी पर्सपेक्टिव इटसेल्फ, क्योंकि एफआरबीएम के बारे में हमने पिछले करंट अफेयर्स की क्लासेस में भी बात की हुई है. ठीक, नहीं पता, पहली बार आप आज ये वीडियो देख रहे हो तो पुरानी वीडियोस जो इसी चैनल पे डल रखी हैं आप जरूर देखिए. राइट, नाउ मूविंग ऑन, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का एक एस्पेक्ट है, रिलेटेड एस्पेक्ट, दैट इज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. तो उसको लेके एक करंट इवेंट हुआ है, दैट इज दी जोराम मेगा फूड पार्क. इट्स इन मिजोरम, सो याद रखना भी आसान. ठीक है,
लेकिन अब इसकी स्पेशलिटी क्या है और ये कहाँ पे है? तो इट इज इन खामरंग विलेज इन Kolasib district of Mizoram, and before that Assam already has a mega food park in the Nalbari district in the northeast. mega food park उसका नाम है, ठीक है। अब mega food park को लेके situation क्या हो रही है, कहाँ पे associated है? So just for your recall purposes I have given the map also. So here it is, right here Mizoram and the Kolasib district. आपको ओवरऑल इसका आइडिया जरूर नॉर्थ ईस्ट नेशंस का होना चाहिए, स्टेट्स का होना चाहिए, सॉरी, ठीक है। देन नेशंस इसलिए क्योंकि ये नेशनहुड के लिए लड़ते रहते हैं, नागा लिम, यू नो दैट ऑलवेज हैपेंस, सो अभी भी चल रहा है। Anyhow, moving back, issues. So within the northeast region, you know, India is connected to the northeast via Chicken Snake Corridor, and to preserve our linkages to prosper there in northeast becomes a challenge for the government also, for the policy infrastructure also. So now for the mega food park scheme also we have started working there in northeast. अब मेगा फूड पार्क स्कीम जो है वो 2008-9 में लॉन्च की गई थी by the Ministry of Food Processing Industry. इसका एम है to provide a mechanism to link agriculture production to the market by bringing together farmers, processors and retailers. Essentially इसने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे ओवरऑल एक मेगा फूड पार्क क्रिएट होगा। आज की डेट में मेगा फूड पार्क की भी जो स्कीम है ये पोषण अभियान के अम्ब्रेला सिस्टम के तहत ही आती है और इसको हम वहीं पे स्टडी करते हैं, ठीक है। Okay, now the components. The scheme is based on the cluster approach and it envisages creation of state-of-the-art support infrastructure, ठीक है, in a well-defined agri or horticultural zones for setting up modern food processing units. So basically हमने करना क्या है, जो सप्लाई चेन है उसकी इंप्रूवमेंट करनी है, वैल्यू एडिशन इंप्रूवमेंट करनी है, ताकि ओवरऑल जो प्रोसेस्ड फूड है, वैल्यू एडेड फूड है, वो मार्केट में आए, अच्छे दामों पे आए, प्रॉफिट्स भी अर्न करे कंपनी के लेवल पे और फार्मर्स के लिए भी एक अच्छा सप्लाई चेन बन जाए ओवरऑल फूड मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के एंगल से, ठीक। नाउ ए मेगा फूड पार्क टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग कौन कौन सी चीजें हैं उसके अंदर? कलेक्शन सेंटर्स, प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर्स, कोल्ड चेन and around 25 to 30 fully developed plots for entrepreneurs to set up food processing units. तो ये सारा एक मेगा फूड पार्क का ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर लेआउट है। Then right now the government is having 18 mega food parks which are already operational and 19 are yet to become functional in a very short period of time, and all this will make India Atmanirbhar that we are all focused about right now. Okay, so with respect to mega food parks, this is how the system goes. So farmer groups, self-help groups and individual farmers can pool in their produce at the collection centers. These collection centers then are, you know, regionally given at all the places. अब वहाँ से वो प्री प्रोसेसिंग सेंटर्स के पास आता है जहाँ पे उसकी कूलिंग, ग्रेडिंग, वॉशिंग सब एक बेसिक लेवल पे किया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल इट रीचेस द मेगा फूड पार्क, और मेगा फूड पार्क इज दी सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर जहाँ पे अल्टीमेटली फूड प्रोसेसिंग होके, लेट्स से व्हीट है तो फ्लिकिंग हो सकता है, कॉर्नफ्लेक्स बन सकते हैं, जैम्स बन सकते हैं, पिकल्स बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें बनेंगी एंड देन इट गोज टू दी domestic retail sales. So that is how the whole thing ends up in your bread and butter or the bread and jam which you enjoy in your breakfast or the cereal for that matter. Okay, now comes the external sector. जो आपके न्यूज़ आइटम्स हैं मैं हमेशा इस तरह से एक ओरिएंटेशन के साथ देता हूं कि पहले जो चैप्टर्स आप पढ़ते हैं उनके साथ जो वैल्यू एडिशंस आ रही हैं वो हम पहले रख लें और जो बाद की वैल्यू एडिशंस है वो बाद में रख लें, बिकॉज इन द फ्लो ऑफ चैप्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी फॉर यूपीएससी दैट वी स्टडी, फर्स्ट ऑफ वी ऑलवेज स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देन कम्स योर नेशनल इनकम, then comes monetary system, financial system, fiscal system, then the sectors of the economy like agriculture, industry, then services, external sector, and in between the sectors and the monetary and financial and fiscal systems there is planning, poverty and unemployment. तो इस तरह से जो टॉपिकल डिवीजन है हम रखते हैं और इसी फ्लो में एज इट इज आपके करंट अफेयर्स आते रहेंगे। जो वर्ड फाइल आज की करंट अफेयर लेक्चर के साथ एसोसिएटेड आपको मिल रही है, इस वर्ड फाइल के अंदर
आप देखेंगे कि हेडिंग्स में सारी चीजें अटैच्ड हैं, तो आप जो ऑलरेडी इन टॉपिक्स के साथ रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ चुके हैं वहां पे आपने इंटीग्रेट भी करते चले जाना है, ठीक है, ताकि आपके पास हर एक नया करंट अफेयर ना बन जाए। आपके पास बस उस पर्टिकुलर एरिया में अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग करंट अफेयर है तो बस एक वैल्यू एडिशन आपके पास जुड़ते चला जा रहा है, ठीक। सो दैट वे आपकी कॉम्प्रिहेंशन भी बेटर होगी, आप चीजों को अच्छे से अप्लाई भी कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक प्रोक्योरमेंट। सो याद होगा आपको, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, इनके साथ इश्यू चल रहे हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो ये वहीं पे आपने ऐड करना है, लाइक आई जस्ट सेड, ओके। सो विद रिस्पेक्ट टू द व्हाट पार्ट, सो गवर्नमेंट की पब्लिक प्रोक्योरमेंट मतलब जो सरकारी खरीद है उसको लेके कुछ रिस्ट्रिक्शंस आई हैं, जहां पे जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 को अमेंड किया गया है और ये एफडीआई को भी अमेंड किया गया है विद दोज कंट्रीज जिनके साथ इंडिया का लैंड बॉर्डर शेयर्ड है। सो वहां पे कुछ ना कुछ रूल्स लगाए गए हैं कि थोड़ा सा कम और या थोड़ा सा ध्यान से जो भी आए वो आए। कारण क्या है? वी वांट टू इंश्योर कि नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा और हमारा ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अनअबेटेड चलते जा रहा है डिस्पाइट द कंस्ट्रेन इन द इलेक्शन कंस्ट्रेन इन द रिलेशंस विद द नेबर्स राइट नाउ। ओके, सो इस सब के लिए रजिस्ट्रेशन कमिटी इज द कंपीटेंट अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय DPIIT, that is Department for Promotion of Industries and Internal Trade, that has been constituted, and this particular body will be utilizing the provisions under Article 257 Clause 1 to guide even the state governments की जो provisions लगाई गई हैं उसके हिसाब से ही वो चलेंगे। अगर FDI में कुछ एक कंस्ट्रेंट्स किए गए हैं तो FDI भी उनके हिसाब से चलेगी, अगर ट्रेड को लेके कुछ कंस्ट्रेंट्स क्रिएट किए गए हैं तो वो भी चलेगा। कंसर्न हमारा रूल ऑफ ऑरिजिन के लिए होता है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आ कहां से रहा है। सो आर्टिकल 257 क्लॉज 1 का बेसिक्स आई हैव गिवन, यू कैन रीड फॉर योरसेल्फ, यू नो इट ऑलरेडी, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दे सकती है फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, और जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या अथॉरिटी है वो सेंटर के साथ चलनी चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं, ठीक। अगर अगेंस्ट चलेगी तो फिर प्रेसिडेंट रूल इंपोज करने का प्रावधान भी है अंडर आर्टिकल 356, ठीक। फिर ऐसे ही इसी के साथ एसोसिएटेड एक और न्यूज आइटम भी है, दैट इज कंट्री ऑफ ऑरिजिन। अब इसमें जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है वो ई कॉमर्स कंपनीज के ऊपर कंट्री ऑफ ऑरिजिन लागू करने की बात करता है, ठीक। लेकिन ई कॉमर्स वेबसाइट्स लाइक Amazon एंड अदर्स, उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई भी सेलर अगर रजिस्टर होगा, कोई भी चीज बेचने के लिए आएगा तो उसको इस तरह से अपनी एक कंट्री ऑफ ऑरिजिन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। पर अगर आप आज की डेट में ग्लोबल वैल्यू चेन्स के बारे में कुछ समझने की कोशिश करें तो आप ये देखिए कि रॉ मटेरियल कहीं से शुरू होता है, फिर एक लेवल 1 वैल्यू एडिशन कहीं पे हो रही है किसी कंट्री में, लेट्स से बेसिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पार्ट्स, फिर वो पार्ट्स जो हैं किसी और कंट्री में जाके असेंबल होते हैं, फिर वो किसी और कंट्री में हो सकता है पैकेजिंग हो रही है, फिर उस पैकेजिंग से फिर एक पर्टिकुलर कंट्री में लैंड कर रही है मार्केट के अंदर सेल के लिए। इस वजह से अब इसमें कंट्री ऑफ ऑरिजिन किसको बोलेंगे, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा डिबेट है। इसलिए हमें अगर ये सर्टन करना है कि चाइना से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स इंडिया में ना आए और हमारे पास रीराउट होके भी इंपोर्ट्स ना आए, जैसे हम पिछले करंट अफेयर्स की वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, तो इस कंट्री ऑफ ऑरिजिन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से एलैबोरेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। और इसी आर्टिकल के अंदर ई कॉमर्स के 2 मॉडल्स के बारे में भी बात की गई थी, मार्केट प्लेस एंड इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल्स। सो मार्केट प्लेस मॉडल पे ही हमारी ज़्यादातर ई कॉमर्स वेबसाइट्स चलती हैं, जहाँ पे दे आर दी थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजर्स फॉर ट्रेड बिटवीन द 2 पार्टीज, दैट इज द बायर एंड द सेलर, ठीक है। और इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में क्या होता है कि वो अपना खुद का सामान रख सकते हैं और बेच सकते हैं। सो इंडिया में वो वाला मॉडल अभी नहीं है, ठीक है। नाउ लॉ डज नॉट मैंडेट द डिस्क्लोजर ऑफ कंट्री ऑफ ऑरिजिन, मैन्युफैक्चर, असेंबली इन द केस ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ठीक है। तो हो सकता है वो मेड इन इंडिया का ठप्पा लग रहा है सिर्फ पैकेजिंग के लेवल पे या असेंबली के लेवल पे, लेकिन उसके पीछे जो असेंबली लाइन या कंपोनेंट्स हैं वो कहाँ से है वो नहीं पता चलता। सो देयरफॉर द कंट्री ऑफ ऑरिजिन क्लॉज जो है उसको थोड़ा और क्लियरली रैशनलाइज स्टेट करने की जरूरत है। नाउ G20 meetings. Now these have been in news for pretty much good amount of time in the last 1 week, और ये ऑनलाइन मीटिंग्स जो डिजिटल फॉर्मेट में है वो चल रही थी। सो 2 मीटिंग्स इसमें हुई हैं। एक G20 के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग है। प्रेसिडेंसी G20 की इस टाइम पे सऊदी अरेबिया के पास है, तो दैट हैज कंडक्टेड दिस मीटिंग, ओके। एंड द फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन February 2020. दिस इज द 3rd मीटिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप
okay, and Saudi Arabia is mediating these meetings, okay. अब G20 ने एक एक्शन प्लान इसमें कंसीव करने की कोशिश की है विद रिस्पेक्ट टू कोविड-19 सिचुएशन. इन दैट एक्शन प्लान the pillars are health response, economic response, strong and sustainable recovery and international financial coordination. ये पिलर्स जो हैं ये आपको प्री और मेंस दोनों के लिए याद रखने हैं, ठीक, ओके. नाउ G20 फाइनेंस ट्रैक डिलीवरेबल्स, कोर लेवल पे क्या किया जा सकता है, तो वो फाइनेंस ट्रैक डिलीवरेबल्स के अंदर बात की गई है. तो इंडिया ने उसमें 2 डिलीवरेबल्स की बात की है. पहला, इनहैंसिंग एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, सो विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट, विद रिस्पेक्ट टू मार्केट्स, सो देयर मस्ट बी opportunity and the access to the opportunity, ठीक. And second is the international taxation agenda, जो आपको याद होगा, base erosion and profit shifting, equalization levy, GAFA tax, ये सब आप पहले पढ़ते आए हो, उसी के साथ रिलेटेड ये भी है, ठीक है. सो बेसिकली जो टैक्स अवॉइडेंस स्ट्रैटेजीज MNCs फॉलो करती हैं उसको लेके सेट करने की कोशिश की गई है. एंड डिजिटल टैक्सेशन और डिजिटल सर्विस टैक्सेस are adopted taxes on revenue that certain companies generate from providing certain digital services such as Google, Apple, Facebook, Amazon. All of them are providing certain digital services, and for them there is an equalization levy that we can charge in India up to 6%. So that was there in since 2016 budget we have placed it, but इंडिया में अभी भी उसकी और ज़्यादा प्रावधान लाने की कोशिश हम कर रहे हैं, ओके. सो दिस इज ऑलरेडी देयर विद यू, द इक्वलाइजेशन लेवी. नाउ India's response with respect to this COVID-19 situation has also been given in the suggestions in this G20 meeting. So what they have highlighted is that the pro-cyclicality of credit rating downgrades. This has been the highlight. अब ये क्या होता है, अपने आप में conceptual level पे इसको समझने की कोशिश करनी है हमने. So India emphasized the need to balance supply side and demand side measures in response to the COVID-19 situation, and it also spoke about the pro-cyclicality of credit rating downgrades by the rating agencies and its deterrent impact on policy options, particularly in the emerging market economies like India and China. Now, what is this pro-cyclicality and all this? So let's see. Pro-cyclical ratings are stricter during an economic downturn than an expansion. साइक्लिसिटी क्या है, यही जब हम बोलते हैं ना बूम एंड बस्ट इन द इकोनॉमी. सो हर कैपिटल इकोनॉमी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो ऐसे बूम और बस्ट के साइकिल्स के थ्रू चलती है. प्रो साइक्लिकल मतलब अब उसको फेवर करने वाले एस्पेक्ट है ना, तो एंटी साइक्लिकल मतलब उसके उल्ट चलने वाले. तो ग्रोथ के साथ साथ अगर कुछ और भी बढ़ रहा है तो प्रो साइक्लिकल, अगर कम किया जा रहा है तो एंटी साइक्लिकल. तो इस तरह से बात करते हैं. सो एज अ रिजल्ट फर्म्स रिसीव ओवरली पेसिमिस्टिक रेटिंग्स इन अ रिसेशन. तो पहले ही साइकिल नीचे को है और रेटिंग्स और भी नीचे उसको धकेलती चली जाएंगी, है ना, रिलेटेड टू ड्यूरिंग दी एक्सपेंशन. तो जब एक्सपेंशन हो रही है तो चाहे एक्चुअल में उनकी हालत बुरी है लेकिन जो रेटिंग्स हैं वो भी अच्छी ही आती जाएंगी. तो ये प्रोसाइक्लिकल बायस जो है रेटिंग एजेंसीज में, ये भी अपने आप में एक हर्टिंग चीज है. ऐसा क्यों इंडिया बात कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे जाके, क्योंकि मेजरली जो रेटिंग्स बिजनेस है वो 3 इंटरनेशनल फर्म्स हैं जो हैंडल कर रही हैं. पहला है स्टैंडर्ड्स एंड पुअर, दूसरा है मूडीज और तीसरा है फिच. सो सारे का सारा जो ऑलमोस्ट 90% ऑफ द वर्ल्ड्स रेटिंग क्रेडिट रेटिंग बिजनेस इज हैंडल्ड बाय देम ओनली. अब इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो बॉन्ड्स हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट आनी है. अगर ये रेटिंग एजेंसीज एक प्रो साइक्लिकल बायस रखेंगी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो बॉन्ड्स हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की जाती है, इनमें इन्वेस्टमेंट उतनी अट्रैक्ट नहीं होगी, एंड देन गवर्नमेंट विल बी स्ट्राइविंग फॉर फंड्स फ्रॉम एल्सवेयर जिनकी कॉस्ट कंपैरेटिवली ज्यादा हो सकती है. तो ये एक हमारे लिए एक केस बनता है. दूसरा, कई बार फिर क्या होता है कि अपने फंड्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, खास तौर पे लॉन्ग टर्म फंडिंग के लिए, आपको जो यील्ड है या गवर्नमेंट बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट पे करना है उस कंपोनेंट को आप बढ़ाओगे तभी जाके आपको वो इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्टिवली मिल पाएंगी. तो ये कंसर्न यहाँ पे बनने की कोशिश की गई है. ओके, नेक्स्ट इज the G20 Digital Economy Ministers meeting. So right now from Indian side, Ravi Shankar Prasad, he is the Union Minister for Electronic and Information Technology. So he represented India government here. तो सऊदी अरेबिया इज होल्डिंग द प्रेसिडेंसी, तो इसमें कुछ खास अभी आउटकम्स नहीं है. तो बस सिर्फ हमें यही 2 चीजें इसके बारे में पता करनी है. नेक्स्ट, concern over import of small arms. So it's the last news item for today's discussion with respect to the weekly current affair of economy class. Okay, so small arms जो हैं उनकी requirement हमारी overall army and other defense forces and the
इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस, सबकी रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन इंडिया में इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, रादर ये कह लीजिए कि इनको बनाने की क्षमता कंपैरेटिवली कम है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको लेके FDI भी 100% तक बढ़ा दिया था। अभी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं करीब 50% इंडिजिनस कंटेंट के बेस पे स्मॉल आर्म्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल दी इंसास राइफल। लेकिन ज्यादातर अब इनकी रिप्लेसमेंट्स चल रही हैं, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेशली फॉर द आर्मीज यूज एक राइफल है SIG 716, जिसकी इंपोर्ट ऑर्डर्स भी USA की फर्म है SIG Sauer, तो इनको दिया है। ठीक है, सिमिलरली रशिया के साथ बात हो रही है फॉर द नेक्स्ट जनरेशन AK, सो दैट इज स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक कोल्शनिकोव, आई होप यू रिमेंबर, सो AK-203 राइफल्स, सो दिस इज ऑल्सो बीइंग टॉक्ड अबाउट। बट इस सारे झमेले के अंदर बात क्या हो रही है कि जो हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे थे, वो डिफेंस सेक्टर में हम क्यों नहीं लेके आ रहे, तो वहां पे रियलिटी में क्यों नजर नहीं आ रहा। तो जो हमारे स्मॉल आर्म मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट या गवर्नमेंट के लिए एक पिटिशन दिया है कि भाई हमारा भी ध्यान रखा जाए, आप इंपोर्ट ऑर्डर पे इंपोर्ट ऑर्डर डालते जा रहे हो, तो हम जो चीजें बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो किसके काम आएंगी। सो दिस वाज द सिचुएशन। अब इसमें से जो आपके प्री के साथ रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो एसेंशियली योर legal perspective, okay, and the rifles perspective, what is being used by what in the defense section, and from the economic perspective, the Atmanirbhar Bharat Abhiyan, is it really an agenda which the government is taking at the ground level, because उनके ऑर्डर्स में ये चीज़ सिंक्रोनाइज नहीं कर रही है। तो जो अगर आपको कभी प्रो एंड कॉन या कमेंट फॉर एंड अगेंस्ट करना होता है, तो वहाँ पे अगेंस्ट वाले कमेंट में ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। ठीक, सो दैट इज इट फॉर मी टुडे एट चेतन भारत लर्निंग फॉर द वीकली करंट अफेयर सेक्शन ऑफ इकोनॉमी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। यूज दिस एंड द वर्ड document I'm repeating again is attached in the pinned comments to this video lecture. So from there on, you can pick up that word document, integrate the same as you have been taught earlier कि कैसे आपने उसको अपने वर्ड फाइल के अंदर रखते चले जाना है, और पुराने जो आपके ऑलरेडी टेबल्स इस तरह से बन रखे हैं व्हाट व्हेन वेयर, अगर उसी इश्यू के साथ रिलेटेड कोई भी एक करंट अफेयर आइटम आपको मिल रही है उसको वहीं इंटीग्रेट कर लीजिए, इट विल बी गुड फॉर यू। थैंक यू सो मच। दिस इज मी अभिषेक शर्मा साइनिंग ऑफ।